Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Nishita Singh from the Department of Commerce. Today we are going to cover a topic from the subject Business Communication Semester 1. This topic is common to all the FY batches, that is FY BCom, FY BAF, FY BCBI and FY BMS. The name of the topic is Feedback and its type. In the previous videos, you must have understood what is communication, the concept and the process of communication, methods, channels, etc. in the process of communication. Today, we are going to understand one of the most essential parts of communication, that is the feedback. So what is feedback? Let's try to understand that. Now, in general idea, we think feedback is any kind of technical information which we have to provide to the sender. जैसे आप अगर कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, आपका कोई सेमिनार या इवेंट होता है, तो आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलता है जो आपको फिल आउट करना होता है. सो हमारे लिए फीडबैक मतलब क्या? एक फॉर्मल फॉर्म जो हमको फिल कर रहा है. बट इमेजिन दिस, यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम, एक टीचर का लेक्चर काफी टाइम से चल रहा है. द वे यू सिट, दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज, the way you yawn perhaps, the way you blink your eyes or nod your head, all these are types of feedback. आपने पढ़ा ही होगा कम्युनिकेशन में कि जरूरी नहीं है कम्युनिकेशन वर्बल ही हो, that is in words. Communication could be non-verbal as well. Your body language, expression, the way you move your head, everything comes under communication. So why not feedback? Because feedback is also a part of communication, right? So now let's understand technically what a feedback is. Feedback is the response of the receiver sent back to the sender in the process of communication. फीडबैक क्या होता है? रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है सेंडर के लिए कि हाँ मुझ तक मैसेज पहुंच गया है, मुझ तक मैसेज पहुंचा भी है, मैंने उस मैसेज को पढ़ा है. एक तो मुझे वो मैसेज समझा या नहीं समझा, तो ये चीज, ये रिस्पॉन्स जो हमारा रिसीवर सेंडर को भेजता है उसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं. Without feedback, the communication is only one way. For example, you see a lot of advertisements on the TV, you read the newspaper. अब आपको भी ये सारा देखकर, पढ़कर कुछ ना कुछ खुद के ख्याल तो आते होंगे, बट आप वो ख्याल कभी भी उस न्यूज रिपोर्टर या टीवी चैनल वाले तक या न्यूज़पेपर राइटर तक नहीं पहुंचा पाते हैं. सो आपके थॉट्स एंड आइडियाज जब आपके दिमाग में रह जाते हैं तो आपको लगता है कि कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रह गया है. दैट इज व्हाट इट इज. Without the feedback, the communication feels incomplete. If you understand the word by breaking it into two parts, you will see that the word feed means information and the word back is to send back. So feedback is the information which the receiver sends back to the sender. So let's understand feedback in the process of communication. You must have already seen this diagram in your previous videos. Process of communication में there are 7 levels. First, the sender comes up with a message. Sender को कोई तो मैसेज कन्वे करना है और इसलिए वो रिसीवर को मैसेज भेजना चाहता है through the medium of a channel. But before sending that message, the sender will encode the message. वो उसको फ्रेम करेगा अपने हिसाब से, एक चैनल यूज करेगा, उस मैसेज को भेजेगा एंड जब वो मैसेज रिसीवर को मिल जाता है तो रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, दैट इज समझने की कोशिश करता है. जब ये सातों स्टेप्स प्रोसेस में कंप्लीट हो जाते हैं तब रिसीवर सोचता है कि मुझे अब सेंडर को एक फीडबैक भेजना है. And that is how feedback comes at the end of the process of communication. Now let's understand the importance of feedback. अगर आप सोचोगे, जैसे मैंने बताया, फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है. व्हाट इफ, लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि आपको किसी ने तो लेटर भेजा है, शायद वो लेटर आप तक कभी पहुंचे नहीं, सेंडर को कैसे पता चलेगा कि आपने वो लेटर रिसीव ही नहीं किया? चलो आजकल तो ट्रैकिंग सिस्टम्स भी आ गए हैं, लेटर हम ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ तक पहुंचा. बट माना चलो आप घर पे नहीं हैं तो आपने कभी वो लेटर पढ़ा ही नहीं, शायद आपके घर वाले आपको लेटर देना भूल गए. अब सेंडर तो इस उम्मीद में बैठा है ना कि आप कुछ तो रेस्पॉन्ड करेंगे, बट अब तक तो मैसेज कभी पहुंचा ही नहीं. सो फीडबैक का सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि वो सेंडर को बता पाता है कि रिसीवर को मैसेज मिल गया है. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज feedback ensures that the message has been received by the receiver.
समझा नहीं समझा वो आगे की बात है, बट पहला स्टेप ये है कि फीडबैक से ही पता चलता है कि मैसेज पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। The second important point of feedback is it gives a chance to the receiver to convey their thoughts and ideas. मैंने बताया ना, आप एक टीवी शो देख रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, या मे बी आपने कोई लेक्चर सुना एंड आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आए। अब आपको आइडिया शेयर करना है। Who would be the best person to share the ideas with if not the sender himself? So आप आपका फीडबैक उसको भेजोगे अपने आइडियाज एंड ओपिनियंस के साथ, तब जाके वो कम्युनिकेशन टू वे हो जाएगा एंड क्लियर हो जाएगा। So feedback gives a chance to the receiver to convey his or her thoughts. Next, the sender understands the shortcomings or strengths of his style, method and channel of communication. अब सेंडर ने आपको मैसेज भेजा थ्रू यूजिंग अ चैनल, उसने एनकोड करके भेजा, उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल रहा होगा। व्हाट इफ आपको मैसेज समझा ही नहीं, तो आप जब सेंडर को फीडबैक दोगे कि मुझे ये मैसेज समझ नहीं आ रहा है, तो सेंडर को भी तो एक आइडिया आएगा ना कि शायद मेरे मैसेज में कमी रह गई, या शायद से मेरे चैनल में कमी रह गई, मे बी देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरप्शन, देयर इज नॉइज, या शायद से मेरे एनकोडिंग में कमी रह गई। सेंडर बताना कुछ और जाता है बट आप समझ कुछ और जाते हो। तो ये सारी चीजें सेंडर को कब समझेंगी? जब आप उनको फीडबैक दोगे। अगेन इन अ क्लासरूम सेटिंग, अगर किसी टीचर ने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया है, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू टेल इट टू द टीचर दैट मैम और सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस टॉपिक, दैट इज योर फीडबैक, so that the sender, that is the professor, will understand कि कहीं तो कमी रह रही है सिखाने में, and he or she will teach you the topic again. And the last point, it involves a two-way communication process. No one likes a one-way communication process क्योंकि it does not give the receiver any chance to say his or her opinions. That's why feedback becomes most important when the receiver wants to be heard and seen. So these are my 4 important points in understanding how essential feedback is. Now that we have understood what feedback is, we can look at its various types. So types of feedback. You can see 5 bubbles here, right? These 5 bubbles actually include 10 types which are interrelated to each other. So let's look at the biggest bubble here, positive and negative feedback. अब हमारे मन में ना एक ऑलरेडी एक इमेज बन गई है कि फीडबैक हमेशा नेगेटिव ही होगा या फीडबैक हमेशा फॉर्मल ही होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग ने एक दूसरा वर्ड भी सुना है, जजमेंट। जब कोई हमें कुछ बुरा बोलता है तो हम उनको बोलते हैं तुम कितने जजमेंटल हो। क्यों? जजमेंट तो अच्छा भी हो सकता है। अगर आप कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो और आप फर्स्ट आते हो, तो वो भी तो जजमेंट के बाद ही आए हो ना, क्योंकि किसी ने आपको जज किया है और उन्होंने सोचा कि आप फर्स्ट आना डिजर्व करते हैं। जैसे जजमेंट खाली नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है, वैसे फीडबैक भी दोनों हो सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब इसको हम लोग एक दूसरा छोटा सा मॉडिफाइड नाम भी दे सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब मैं किसी को पॉजिटिव फीडबैक क्यों देती हूं? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि वो सेम एक्शन कंटिन्यू करे। जब कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो बॉस उसको जाके शाबाशी देता है। इससे एम्प्लॉय के मन में ऐसी विश आती है कि वो ये सेम अच्छा काम वापस करे और सेम बॉस आके उसको अप्रिशिएट करे। सो पॉजिटिव फीडबैक बेसिकली आपको ट्रेन करता है कि आप उसी एक्शन को दोहराए तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। Whereas नेगेटिव फीडबैक कंप्लीटली अपोजिट करेगा। अगर आपकी कोई एक्शन डिसएग्रीएबल है तो आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, तो आप नेक्स्ट टाइम उस एक्शन को करने से पहले 10 बार सोचोगे। So positive and negative feedback are actually training the people on how to act and how to react. So that is our first and most important type of feedback. Second, we can see immediate and delayed feedback. इमीडिएट ये वर्ड से आप समझ सकते हैं कि जो फीडबैक आपको तुरंत मिलता है, दैट इज एन इमीडिएट फीडबैक। अगेन कमिंग बैक टू द क्लासरूम एग्जाम्पल, if I'm teaching something, I can just look at the faces of the students and understand if they're interested in the chapter or not. So that is an immediate feedback within seconds. Whereas a delayed feedback could be the ones you fill out. आपका सेमिनार के बाद जब आपको फीडबैक फॉर्म भेजा जाता है, कई बार
बच्चे 2-3 दिन लगा देते हैं, या कई बार कोई कंपनी जब अपने कस्टमर्स को फीडबैक फॉर्म भेजती है तो महीने लग जाते हैं फीडबैक आते आते. सो सच काइंड ऑफ फीडबैक विल बी डिलेड फीडबैक. नेक्स्ट वी हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल फीडबैक मतलब जो सबके सामने रिकॉग्नाइज किया जाता है. जैसे आपने कोई ट्रॉफी जीती और आपके प्रोफेसर ने आपको पूरे क्लास के सामने बुलाकर सबसे ताली बजवाई, एक अप्लॉज दिया, दैट इज अ फॉर्मल फीडबैक. मैं फॉर्मली पूरे क्लास के सामने आपको एक्नॉलेज कर रही हूं कि आपने कुछ तो अच्छा काम किया है. Whereas इनफॉर्मल फीडबैक वो आपको मैं पर्सनली बताऊंगी कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा था. इट इज नॉट डन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट. वो पर्सनली किया जाता है. सो दैट इज इनफॉर्मल फीडबैक. नेक्स्ट ओरल एंड रिटन. ओरल मतलब जो आप मुंह से देते हो, यूजिंग योर माउथ, यूजिंग वर्ड्स, दैट इज नोन एज ओरल फीडबैक. Written, again you use words but it is in the written format. Now let's understand oral and written feedback in an organizational concept, because ये बहुत ही ज्यादा important होने वाला है आपके लिए. Although we understand that oral feedback is much more effective for employees, क्योंकि जब एक बॉस ओरली उनको कुछ बताते हैं तो उसका पावर एंड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्रेजेंट में हो रहा है तो उस वक्त एम्प्लॉयज भी अटेंटिव रहते हैं. बट ओरल फीडबैक का ये डिसएडवांटेज है कि उसका कोई रिकॉर्ड या प्रूफ नहीं है. यू कैन नॉट शो टू एनीवन दैट दिस फीडबैक हैज टेकन प्लेस. Whereas अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके लिए रिटन फीडबैक विल बी वेरी मच एसेंशियल. All your salary hikes or promotions will be decided on the basis of the written feedback which you received during the year, because written feedback acts as a proof, a legal proof that this feedback has taken place. Sorry. So although oral feedback is very effective in the organizational level or culture, written feedback has more importance. Nonetheless, you should not underestimate the effect of oral feedback. And then last we have peer and self feedback. Peer is the people whom we live around. ये हमारे दोस्त हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या पहचान के कुछ लोग. सो इनको हम लोग peers बोलते हैं. जब ये लोग हमें फीडबैक देते हैं तो वो प्योर फीडबैक हो गया. अब कभी कभी तो हम भी खुद को फीडबैक देते हैं. कभी आपने कोई ड्रेस पहना, आप ही खुद सोचते हो ना आईने के सामने खड़े होके, नहीं नहीं ये ड्रेस मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है. सो ऐसा टाइप का फीडबैक इज सेल्फ फीडबैक. आप खुद ही समझ जाते हैं कि आपके एक्शंस कहाँ सही है और कहाँ गलत है, इसलिए आप खुद को फीडबैक दे सकते हैं. सो दीज आर माई 5, दैट इज एक्चुअली 10 types of feedbacks which are the most essential ones. Apart from this, we have more 6 or 7 kinds of feedbacks. So let's look at those. First is descriptive. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के लिए बहुत मेहनत से बर्थडे गिफ्ट लेकर गए, आपने महीनों उस गिफ्ट को ढूंढने के लिए टाइम स्पेंड किया, मनी स्पेंड किया, या मे बी आपने बहुत मेहनत करके अपने हाथ से कोई गिफ्ट बनाया हो और सामने वाले का रिएक्शन बस इतना. तो क्या फायदा उस रिएक्शन का? मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई खुशी नहीं. उस टाइम पे आप क्या एक्सपेक्ट करते कि उनका रिएक्शन एकदम धमाकेदार होना चाहिए, एकदम सरप्राइज्ड होना चाहिए. आप कोई तो डिस्क्रिप्शन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बताए आपने जो गिफ्ट चूज किया है वो कितना अच्छा गिफ्ट है, उस गिफ्ट को वो जिंदगी भर संभाल के रखेंगे. सो ये जो आपके एक्सपेक्टेशंस है वो एकदम सही है. यही फीडबैक को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. जो नॉर्मल फीडबैक होता है ना, वो रिसीवर को सेटिस्फैक्शन नहीं देता है. आपने समझो एक बहुत अच्छा पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया आपके ऑफिस में, आपके बॉस ने खाली बोला अच्छा था. आपको कैसे पता चलेगा कौन सा पार्ट उसमें अच्छा था, कौन सी चीज आपके बॉस को स्पेसिफिकली अच्छी लगी, कौन सी चीजें शायद उनको नहीं अच्छी लगी. सो जब आपके बॉस आपको एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस एंड इम्प्रूव अकॉर्डिंगली. So descriptive feedbacks are very important when we are talking about a particular person, particular task or particular event. Next kind of feedback is evaluative. स्कूल कॉलेज यहाँ में तो आपको रिजल्ट्स मिलते होंगे ना, तो फॉर्मल रिजल्ट जो आप घर पे जाके दिखाते हो अपने पेरेंट्स को. तो ये जो रिजल्ट होता है ये क्या करता है, आपके पूरे साल की परफॉर्मेंस को टेस्ट करता है एंड उसके बेसिस पे आपको एक इवैल्यूएशन देता है, दैट इज असेसमेंट और रिजल्ट. तो इसी को हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएटिव फीडबैक.
यूजुअली इसमें किसी एम्प्लॉय या किसी टास्क या किसी इवेंट का ओवरऑल समरी लिखा जाता है एंड एक फॉर्मल एंड वेरी मैथमेटिकल टेक्निकल फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव प्रिस्क्रिप्टिव फीडबैक। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बोलते होंगे ये खाना बंद कीजिए, वो खाना बंद कीजिए, दवाइयाँ लीजिए, सोना शुरू कीजिए टाइम पे, बट हम यूजुअली तो इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। बट डॉक्टर करना क्या चाहता है, वो हमको प्रिस्क्राइब करता है कि हम ऐसे ऐसे करें ताकि हम में कोई तो चेंज आए फॉर बेटर। सो प्रिस्क्रिप्टिव फीडबैक का मेन इंटेंशन ही यही होता है कि वो सामने वाले को बदल पाए इन अ गुड वे। See, when you give a descriptive feedback, the intention of the sender, the one who is giving the feedback, is not to change you. He or she is just giving you feedback. But in prescriptive feedback, the one who is giving the feedback will want some kind of change from you, some kind of action from you. Next we have task or procedural. Obviously the name itself is evident कि आप जब कोई टास्क करते हैं एंड उसके ऊपर आपको फीडबैक मिलता है तो स्पेसिफिक टास्क फीडबैक को हम लोग टास्क और प्रोसीजरल फीडबैक कहेंगे। नेक्स्ट इज रिलेशनल फीडबैक। अगेन यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द वर्ड हाउ यू मेंटेन योर रिलेशनशिप विद अदर्स is assured in this relational feedback. The boss will come and give you a feedback if you maintain good relationship with others, and if you have some bad relationship तो तुम कैसे उसको सुधार सकते हो, कैसे बेटर कर सकते हो अपने क्वालिटी एंड बॉन्ड को with your colleagues और with your classmates. So ऐसे काइंड के फीडबैक को हम लोग बोलते हैं रिलेशनल फीडबैक। Then last but not the least is the individual and group feedback. आपको आदत होगी working in a lot of group projects together. Sometimes there is always this one person who ruins the group project. So at such times the professor will only talk to the particular individual that बाकी सबने अच्छा काम किया but आपको थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी. That is an individual feedback. अगर समझो पूरे ग्रुप ने ही खराब काम किया तो प्रोफेसर को तो पूरे ग्रुप से बात करनी पड़ेगी एज अ कलेक्टिव यूनिट। ऑब्वियसली वो इंडिविजुअली हर एक मेंबर को अपनी वीकनेसेस तो बताएंगे बट एज अ ग्रुप उनका कोऑर्डिनेशन में कमी रह गया या उनके एग्जीक्यूशन में कमी रह गया, ये सारे एस्पेक्ट्स पे भी प्रोफेसर पॉइंट आउट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप फीडबैक। सो लेट्स रिकलेक्ट ऑल द काइंड्स ऑफ फीडबैक। वी हैड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, वी हैड इमीडिएट एंड डिलेड फीडबैक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक, oral and written feedback, peer and self feedback, and then we have these 6 kinds: descriptive, evaluative, prescriptive, task, relational, individual and group. So these are all the kinds of feedback as well as the understanding of a feedback. Here there is a very important quote: a message that doesn't get a response is not communicated, and that is true enough. अगर एक सेंडर मैसेज भेजता है लेकिन उसको रिसीवर से रिस्पॉन्स नहीं आता है, देन वी हैव टू अज्यूम दैट द मैसेज इज नॉट कम्युनिकेटेड विदाउट द फीडबैक. So the process of communication will always remain incomplete if there is no feedback. Now that you have understood the importance of feedback, I hope you could also apply it in your daily life and in the exam as well. Thank you for listening to this PPT and paying attention.